Hello students, today we are going to conclude this chapter work, energy and power. Okay, so this is the fourth video, I think so. So in this video what we will study the energy transformation, okay, and what can you conclude from kinetic energy. When what is the conclusion of kinetic energy formula जो हमने किया, relation between the kinetic energy and the momentum and power, okay, and the unit of power and commercial unit of the power. In this way we will conclude the chapter today. The first is the energy transformation. I am talking about the energy that is only mechanical energy, okay, when how kinetic energy is converted into the potential energy and potential energy is converted into the kinetic energy with different cases. So first is energy transformation. Energy transformation. Okay, so energy transformation में मैं तीन केसेस ले रहा हूं. पहला केस नंबर 1, when a body falls from a certain height. When a body falls from a certain height. H-E-I-T-H-E, okay. So body is falling from a certain height. Okay, now I'm explaining this, how potential energy is converted into the kinetic energy. In this case, when a body falls from a certain height, potential energy gets converted into the kinetic energy when it touches the ground. Okay, so इसमें suppose a body is there, a body of mass, some mass is there, and you are keeping the body at height h. So when you release this, body comes to here and ultimately it comes to the ground position. This is the ground. Okay, so here you see, if you are keeping the ball or body at a height h, this is h, if you are keeping this, so you are working against the gravity because gravitational pull is pulling towards the earth or ground. Okay, this is the ground, तो आप काम कर रहे हैं opposite against में. Okay, so that work then is converted into the potential energy because height है इसलिए, और velocity 0 है यहाँ पर. V is equal to 0 because you are keeping the ball. Okay, so V is equal to 0, therefore kinetic energy is also 0, and potential energy, because it is attaining a height, so potential energy is equal to mgh. Now you are releasing the body. अब जैसे ही आपने इसको बॉल को छोड़ा, ball will attain a velocity because the gravitational pull, acceleration की वजह से ये बॉडी जैसे ही आप छोड़ोगे इसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी और वेलोसिटी यहां तक इंक्रीज करती जाएगी. In this case h becomes 0, therefore potential energy is equal to 0 and velocity, due to the velocity, kinetic energy will be maximum. Okay, यहां पर kinetic energy maximum just touching the ground. So in this case here आप देख रहे हैं कि potential energy is gradually converted into the kinetic energy. Okay, when you release the body from a certain height, the potential energy is gradually converted into the kinetic energy. This is the conclusion of this case. Now the student, next case is when a body is thrown up. If a body is thrown up, the kinetic energy, you are giving the kinetic energy because you are giving the velocity. The body is having the mass, some mass, okay, and you are giving the velocity, so it attains the kinetic energy. So
You are giving the kinetic energy, and whenever it goes up at a certain height, at the maximum height the velocity becomes 0. Okay, तो height होने की वजह से suppose a body is thrown from the here. This is the body. ये ground है और इसको आपने ऊपर फेंका, यहाँ आई बॉडी, उसके बाद और ऊपर गई या मैक्सिमम हाइट पे जाए। ये देखिए, ये है h हाइट तक ये चली गई। ओके, यू आर गिविंग द वेलोसिटी, यहां पर आपने वेलोसिटी से किया, तो वेलोसिटी यू आर गिविंग द वेलोसिटी ड्यू टू वेलोसिटी व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम। यहां पर आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और क्योंकि हाइट यहां पर 0 है, सिंस h इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बॉडी ऊपर जाना शुरू किया, बॉडी इज गोइंग अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, एंड h इज इक्वल टू मैक्सिमम। यहां पर h इज इक्वल टू आप देखिए मैक्सिमम हाइट पर, तो यहां पे v इज इक्वल टू 0 हो जाए। आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने पर वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। नाउ इसको आपको करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्यों इसकी वेलोसिटी क्यों कम हो रही है? ग्रेजुअली इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, यहां पर भी लगेगा, यहां पर हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पुल नीचे की साइड में लगेगा, ग्राउंड की तरफ लगेगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी। सो यहां पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट मैक्सिमम हाइट, एंड एट दिस point potential energy is equal to maximum होगी and kinetic energy will become 0. So when we throw up a body at a certain height, what kinetic energy converts into the potential energy gradually. Okay, this is the same case जो अभी आपने पहले पढ़ा था, kinetic energy gets converted into the potential energy. Okay. So यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन यू आर गोइंग टू थ्रो द बॉडी। ओके, समझ में आ गई बात? नाउ स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 आई एम गोइंग टू टेल यू द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम एक्चुअली? सपोज सिंपल पेंडुलम मान लीजिए यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस रिजिड वो है, और एक हमने पतले से थ्रेड में एक बॉब, मेटालिक बॉल है ये, इसको बॉब बोलते हैं, BOB बॉब, इसको हमने ऐसे बांध दिया और ये पेंडुलम ऐसे होता है, आपने घड़ी में भी देखा होगा पेंडुलम। सो जब इसको हम रेज, इसको वेलोसिटी प्रोड्यूस करते हैं या एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के यहाँ छोड़ते हैं, तो ये इस तरीके से मूव करता है। यहां पे देखिए ये बॉडी बॉब यहां पर आ गया और यहां मैक्सिमम पोजीशन दूसरी, ये एक्सट्रीम पोजीशन ये आ गया। अब देखिए यहां पर इसका ये सपोज ये जो है मीन पोजीशन A है, ये B है, यहां से हमने इसको ऐसे भेजा था, फिर ये वापस आया ऐसे और फिर ये गया ऐसे C पोजीशन पे और फिर ये वापस मेन पोजीशन पे। सो इन दिस वे ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो जब ये B पोजीशन पे आएगा या ये C पोजीशन पे आएगा तो अटेन सम हाइट, ओके, H इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने में थोड़ी सी हाइट गेन करेगा, और यहां पर भी यही होगा, H हाइट इक्वल हाइट अटेन करेगा दोनों साइड में। ठीक है, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है एट दिस पोजीशन B, ठीक है, एट पॉइंट B, यहां पर आप देखिए बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकती है और उसके बाद फिर यहां जाती है। सपोज आपने यहां पर बॉडी बॉल को लाके छोड़ दिया या इधर लाके छोड़ दिया, तो ये पहले यहां आएगी मीन पोजीशन पे, फिर ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जाएगी। तो यहां पर V इज इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर KE इज इक्वल टू हो जाएगा 0, बिकॉज KE इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो V 0 है इसलिए KE इज इक्वल टू 0 होगा, और H हाइट है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी।
हाइट जितनी भी हाइट पर होगा वो आप जितना भी ऐसे करके छोड़ेंगे तो और भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों पोजीशन पे यही होगा, एट बी एंड एट सी। फिर जब ये बॉडी यहां से ऐसे जा रही है तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल एक्सेलरेशन इसको वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो एट ए क्या होगा, ड्यू टू वेलोसिटी के ई इज इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा। इस पोजीशन ए पर के ई मैक्सिमम होगा, यहां पर भी के ई आना स्टार्ट होगा। कन्वर्टेड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली यहां से यहां तक आ रहे हैं, और यहां पर मैक्सिमम होगा, फिर यहां से जाते हैं काइनेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, फिर वापस वहां से आएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी जीरो, बिकॉज यहां हाइट जो है वो जीरो होगी लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड अगेन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू एंड फ्रो मोशन। ये इस तरीके से कन्वर्जन होता रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आया? Okay, student, the next topic is what we conclude from Ke is equal to half mv square. This is the formula for calculating the kinetic energy of a body of mass m and moving with the velocity v. So this is the formula for finding the kinetic energy of a body having mass m and moving with velocity v. Okay, so this is the formula. What we हम इसमें first thing what we conclude, kinetic energy is directly proportional to m when v is constant. अगर v constant है, velocity constant है, ठीक है, directly proportional to the mass of the body. इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी के मास को डबल कर देंगे तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। उस बॉडी किसी भी बॉडी के मास को हाफ कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, बॉडी ऑफ मास m, ये देखिए ये बॉडी है, इसका मास m है और इसकी जो वेलोसिटी है v, ठीक है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर एज पर द फॉर्मूला। ओके, नाउ अभी हमने एक और बॉडी ली जिसकी जो मास है वो मान लीजिए थोड़ा और बड़ा लेते हैं, बॉडी बड़ी ले लेते हैं, और द मास इज 2m एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में। देन के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। ओके, अब यहां मास 2m हो गया, तो अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 m वी स्क्वायर, ये जो पहली वाली KV1 लिख देता KE2। सो आप देख रहे हैं यहां पर KE2 जो है ये हो गया ट्वाइस ऑफ KE1, पहले वाले बॉडी से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल, ठीक है। सो इन दिस वे अगर डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, अगर हम हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। देखिए पहले तो इतना ही था कि अगर हम इसको हाफ कर दें बॉडी को, इसको 1/2m कर दें और वेलोसिटी सेम, ओके, तो KE मैं इसको 3 लिख रहा हूं, ठीक है, इसको 3, तो 1/2 इंटू 1/2m इंटू वी स्क्वायर। सो KE3 जो आएगा वो आएगा 1/2 और ब्रैकेट में 1/2m वी स्क्वायर एंड ये क्या है KE1। सो KE3 जो है ये हो गया 1/2 इंटू KE1। सो अब देख रहे हैं अगर आपने बॉडी के मास को हाफ किया तो
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो गई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास when v is constant, the velocity of the body is constant. ठीक है, समझ में आ गया? Now the student, the second point, the kinetic energy is of a body is directly proportional to the square of its velocity. Square of its velocity, because k is equal to half mv square होता है, तो अगर half m को हटा दे, constant कर दे, when m is constant, मास अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वो भी कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। और अगर हम वेलोसिटी को हाफ कर देंगे तो बॉडी की जो वेलोसिटी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, वो उसके 1/4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 1/4 1/4 हो जाएगी। ठीक है, टेक एन एग्जांपल, अ बॉडी इज देयर, ये एक बॉडी है जिसका मास m है and it is moving with velocity v. Initially this is moving with velocity v. So kinetic energy कितना हो जाएगा इसका? Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. This is the formula for finding the kinetic energy of this body. अब हमने इसकी velocity को, the same body is there, mass is the constant, m ही है, और velocity को मैंने किया 2v. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ये नंबर 1 है, काइनेटिक एनर्जी नंबर 2 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2v होल स्क्वायर। वेलोसिटी इज 2v, तो उसकी जगह पे 2v रिप्लेस किया। नाउ व्हाट हैपेंड? 1/2 m 4v स्क्वायर। अब ये हम 4 को यहां बाहर निकालेंगे, 4, और ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज ke1, so ke2 जो होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ke1। पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी से 4 गुना, 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसकी वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दें, ठीक है, तो जैसे इसकी वेलोसिटी को मैंने 3v कर दिया, मास इज सेम, मास वही है, मैं थोड़ा बड़ा बना दिया, सॉरी ये थोड़ा उसके बराबर बनाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, समझने के लिए। सो ke3 क्या हो जाएगा? 1/2 m इंटू 3v का होल स्क्वायर। अब वहां क्या आएगा? 9v स्क्वायर। ke3 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 9v स्क्वायर। 9 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, 9 इंटू हाफ mv स्क्वायर, और ये हो गया 9 इंटू ke1, बिकॉज ke1 ये है। तो ke3 जो होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3 विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ k1। ओके, यहां पर ठीक है, इस तरीके से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स टू नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एंड इट्स मोमेंटम। अब देखिए, अगर कोई बॉडी को आपने रिलीज किया हैविंग सम मास, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और वो जब ग्राउंड पे गिर जाएगी बॉडी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का हुआ क्या? दैट काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी मोमेंटम। और मोमेंटम क्या, ग्राउंड पे गिरने पर क्या होगा? कुछ आवाज आएगी, उस पे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या उस जमीन पे कुछ नुकसान होगा, उस पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी? तो वो मोमेंटम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस मोमेंटम से जाकर के वो बॉडी टकराएगी। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? ठीक है, सपोज लेट अ बॉडी
of mass m is moving with velocity v. Therefore its momentum p, small p is equal to mass into velocity. आपने पढ़ा है पहले से. Therefore v is equal to क्या हो जाएगा, p upon m, p upon m, और इससे हमें मिलेगा v square is equal to p square upon m square. Why v square? Because काइनेटिक एनर्जी में v square होता है, इसलिए मैंने v square फाइंड आउट किया. ठीक है. Now the kinetic energy of the body is equal to half m v square. Now put the value of v square here. What we will get? 1 by 2 m. अब इसको नीचे लिखना, p square upon m square. एक m यहां से कैंसिल हो जाएगा. अब p square को छोड़ के 2m का मल्टीप्लाई यहां कर दें, तो what we get, p square is equal to 2m into ke. ठीक है. और अगर p की वैल्यू निकालना तो p is equal to square root of 2m into ke. So this is the relationship between kinetic energy and the momentum of the body. Okay, तो इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल मिल सकता है आपको. काइनेटिक एनर्जी दी हो, मोमेंटम पूछ सकते हैं, मास दिया होगा. ओके, और अगर मोमेंटम दिया है, मास दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आपसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड पूछ सकते हैं. नेक्स्ट and the last topic is power. What is power? You have already studied in the lower classes what is power. वहां पर आपको पढ़ाया गया था the amount of work done in unit time, or the rate of doing work is called power. The rate of doing work is called power. Okay, the rate of doing work is power. अब ये जहां पर ये rate आया, इसका मतलब divided by t, time. Okay, so power work done upon time, मतलब p is equal to जो होगा power p is equal to the work done W upon time taken T. It means P is equal to W upon T. This is the formula for finding the power when work done is known. Okay, now power is the scalar quantity. Power is स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. तो क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी. ठीक है. पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी. अब हमको पावर कैलकुलेट करना है. अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और मतलब एक बॉडी है, उसको v वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितनी पावर चाहिए, m मास है उसका. और मान लीजिए कोई बॉडी वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से, उसको रोकने की. when a body move with a certain velocity, or when a body moving with certain velocity is stopped, तो उस केस में p is equal to होता वर्क डन इन अपॉन टाइम होगा. ठीक है. और वर्क डन क्या है यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. और डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि आप अगर फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी ना. तो फोर्स अप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क डन होगा. ठीक है. सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब देखिए ये s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी. तो इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी. ये
पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ अ बॉडी, नेक्स्ट है किसी एक बॉडी को ऊपर उठाया गया, h हाइट तक ऊपर उठाया गया, देन द पावर इज इक्वल टू द mgh अपॉन t। ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी आप वर्क करेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा और वो होगा P इज इक्वल टू mgh अपॉन t। ठीक है, समझ में आया? ये उस तरह इस समय का है जब कोई वेलोसिटी, बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही है और आप उसको रोक रहे हैं या किसी बॉडी को आप वेलोसिटी उसकी चेंज करेंगे तो कितनी पावर की नीड होगी वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द स्टूडेंट एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है वो कैलकुलेट करना है हमें। तो हमको पता है पावर P इज इक्वल टू होता है वर्क डन W अपॉन टाइम, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, टाइम T। ना एसआई यूनिट ऑफ पावर, अगर हम एसआई यूनिट निकालेंगे तो हम लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, J, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जूल, स्मॉल j से, अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड्स, ठीक है, S। तो ये हो गया आपका जूल पर सेकेंड और इसको लिख सकते हैं जूल सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ 1 जूल पर सेकेंड को कहा जाता है वॉट, स्मॉल WATT वॉट, ये W। सो SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये इस तरीके से स्मॉल WATT लिखिए या कैपिटल W बना दीजिए तो ये आपका पावर की यूनिट होगी। अब 1 वॉट क्या होता है? 1 वॉट, when 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in 1 second, the power of the body is called 1 watt. Okay, इस तरीके से आप 1 watt को बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हायर यूनिट्स है, जैसे 1 किलोवाट होता है, ये होता है 1000 वॉट, 1 मेगावाट is equal to 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt is equal to 10 to the power 9 watt। तो ये कुछ और हायर पावर्स होते हैं। इसके अलावा आपने हॉर्स पावर सुना होगा, 1 हॉर्स पावर is equal to 746 watt होता है। दिस इज, ये भी आपने पढ़ा होगा, मोटर जो भी होती है ना, कितने हॉर्स पावर की है ये आपने सुना होगा। तो ये 1 हॉर्स पावर is equal to 746 watt कहलाता है। Now the student, next topic is the last topic, that is commercial unit of power. The commercial unit of power is kilowatt hour, small k capital W small h, kilowatt hour। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर is the energy used or produced by a machine in 1 hour if it is consumes or produces 1000 joule per second। आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप अप्लायंसेस घर में जो आप किलोवाट आवर होते हैं इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। आपका जो मीटर में रीडिंग आती है ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट पर डे, जो 5 यूनिट 10 यूनिट आता है आपके यहाँ घर में, वो क्या होता है कि 1 यूनिट का मतलब ये होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 1000 वॉट का अप्लायंस, जैसे इमर्शन रॉड या प्रेस या आपका जो ओवन होता है, ये 1000 वॉट के होते हैं। ओके,
अगर इसको आप 1 आवर चलाएंगे तो मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाएगा। आपका जो कंजम्पशन होगा वो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर का होगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वॉट इंटू 60 सेकेंड। और वॉट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। तो यहां लिख सकते हैं 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। तो ये सेकेंड कैंसिल हो गया, कन्वर्ट हो गया जूल में। 60 इंटू 60 3600 और 3 0 ये लगेंगे तो आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में, क्वेश्चंस में छोटे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वे हमने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस चैप्टर का खात्मा हो गया। ठीक है, अब इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा ही कुछ बताया है इसमें चीजें। और आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके जो एक्सरसाइज इन-टेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं वो कराएंगे और इसके जो चैप्टर एंड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। दशमला हो सकता है मे भी आपको समझ में आया हो सभी चीजें। ठीक है, ओके।